Hi everyone. Now let's look at the PYQs of Circle, the important PYQs from Circle area. Earlier, I have released a video on the concepts of Circle, so I hope all of you would have seen that. If you look at from Circle area last year, across the three slots, there was just one question. So, and over the period also, if you look at last 2-3 years, I mean, from Circle topic, you will find maximum two questions. Mostly, you will find one question or no question, right? So, this is not that important topic in geometry, but still, the questions that are being asked are slightly on the easier side, so it's better to go through them because this year there might be one or two questions from Circle, right? So we'll start with 2022 questions and then we'll look at other important PYQs. Apart from that, I've also conducted a practice test on Unacademy Learning app, so make sure that you have watched that. So these three things: concept video, practice test, and PYQ. All these are free, so just go through them. You will require to spend about 2 to 3 hours in total, and you will be able to complete this topic. So let's begin with the topic. And before that, just want to quickly tell you that make sure all of you have joined my Telegram channel so that you can get all the updates for the other topic, that is mensuration, coordinate geometry, trigonometry. The videos are coming, so you will get all the update. And yeah, make sure that you subscribe to Unacademy Plus or Iconic subscription in case if you wish to, using my code SHART10. Okay, now let's look at the first question, that is from 2022 slot 3. So this question is actually a simple question but can confuse you with the figure. So in a triangle ABC, AB and AC are 8 centimeter. So we are given a triangle ABC where AB and AC are 8 centimeter. A circle drawn with BC as the diameter passes through A. So we are talking about this yellow circle. So where the BC is the diameter, and let's indicate some center over here. Another circle drawn with center A passes through B and C. सो एक और सर्कल हमने ड्रॉ किया जिसमें हमने ए सेंटर रखा, ये वाला सर्कल ग्रीन कलर का. देन द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द ओवरलैपिंग रीजन बिटवीन द टू सर्कल. अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये जो ओवरलैपिंग रीजन का एरिया है दो सर्कल का वो फाइंड करना है. तो कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं? अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो आप 30 सेकेंड्स के लिए थोड़ा सा पॉज ले लो, सोचो पहले कि क्या करना है. एक बार आपका माइंड में अप्रोच तैयार हो गया, उसको इंप्लीमेंट करना है आपको. जैसे सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा पता है, ये जो बड़ा सर्कल है ये ग्रीन कलर का, क्या ना इसे, ये उसका सेक्टर है जिसमें एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना. ए बी एन ए सी डायमीटर ये है, तो डायमीटर सर्कमफ्रेंस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है. तो मैं क्या करूंगा, ये सेक्टर का एरिया फाइंड करूंगा, सेक्टर ए बी सी का एरिया फाइंड करूंगा पहले. ठीक है, फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूं, उसमें मैं ये दूसरा सर्कल जो छोटा वाला सर्कल है उसका हाफ पार्ट ऐड कर सकता हूं. लेट मी शेड. तो मैं ये ऐड कर देता हूं, ये हाफ सर्कल. सो प्लस हाफ ऑफ स्मॉलर सर्कल का एरिया. अब यहां पे अगर आप देखोगे ये जो ट्राइंगल एबीसी है वो 2 बार काउंट हो गया, तो इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी सब्ट्रैक्ट कर देना है. दैट्स इट. अगर आपने इतना किया आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा. सो लेट्स लुक एट द सोल्यूशन. पहले तो आपका ये जो ए सी है, सेक्टर ए सी, उसमें रेडियस क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और एंगल 90 डिग्री है, तो एरिया क्या होगा, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. दिस इज हाउ वी फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर. प्लस हाफ ऑफ सर्कल आपको पता है 1/2 पाई इंटू आर स्क्वायर. अब यहाँ पे आर क्या लेंगे, तो दोस्तों आपको पता है कि ये एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 8 है, ये 8 है, ये 90 डिग्री है, तो ये 8√2 हो जाएगा. मतलब ये पार्ट 4√2 हो जाएगा, ये भी 4√2 हो जाएगा. सो रेडियस 4√2 है. ठीक है, यहाँ पे रेडियस क्या है, यहाँ पे रेडियस 8 है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विच इज नथिंग बट 1/2 प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स. तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू ये आ जाएगा 64 पाई, प्लस ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर करना रह गया था. सो 4√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32/2, 16 पाई, माइनस ये कितना आ जाएगा 32. सो अगर आप देखोगे ये आ जाएगा आपका 32 पाई माइनस 32 विच इज नथिंग बट 32 इंटू पाई माइनस 1. तो ये आपका आंसर आ गया. मतलब अराउंड 2 मिनट आप स्पेंड करके पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. एंड दिस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू नीड टू मेनली सॉल्व. लेट्स लुक एट फ्यू अदर क्वेश्चंस. अगर आपके सर्कल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, कुछ 6-7 पॉइंट मैंने उधर बताए हुए हैं, वो आपने अच्छे से कर लिया, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एट द सेंटर ऑफ अ सिटीज म्यूनिसिपल पार्क देयर इज अ लार्ज सर्कुलर पूल. सो ये हमने सर्कुलर पूल दिखा दिया. अ फिश इज रिलीज्ड इन द वाटर एट द एज ऑफ द पूल. सपोज मैंने यहां से फिश को रिलीज किया. द फिश स्विम्स नॉर्थ फॉर 300 फीट बिफोर इट हिट्स द एज ऑफ द पूल.
तो फिश जो है यहाँ से ऐसे जाती है नॉर्थ की तरफ और एच पे उसने हिट किया, इट टर्न्स ईस्ट एंड स्विम्स फॉर 400 फीट। तो और उसने 400 फीट तय किया, ठीक है। तो ये 300 है, ये 400 है, डेफिनेटली ये आपका 90 डिग्री बनेगा। मतलब अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं तो ये क्या होना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए सर्कल का, क्योंकि ये 90 डिग्री है, डायमीटर ही सर्कमफरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो हमें पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द पूल। सो आपको पता है 300 400, तो ये कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, तो ये 250 और ये 250, तो मतलब हमें रेडियस मिल गया। तो ये पूल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 250 का स्क्वायर। तो मतलब आपको पता है 250 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, पीछे 2 जीरो और साथ में पाई लगा देना है, डन। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन रिप्रेजेंट इन सेंटीमीटर द पॉसिबल लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, आपको पता है आपने रेक्टेंगल बनाया है, तो अगर डायगोनल को ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर ही सर्कमफरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और आपको ये चीज बताइए कि इसकी रेडियस 13 है, ये 13 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 26। दोस्तों 13 वाला कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट आता है, 5 12 13, उसमें अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 10 24 26। तो अगर ये हाइपोटेनस 26 है तो ये 24 और ये 10 हो सकता है, डन हो गया, ये लेंथ एंड ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, ओके चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सर्कल पासेस थ्रू द वर्टेक्स ए ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी, उसके वर्टेक्स ए से सर्कल पास हो रहा है, एंड इज टेंजेंट टू बीसी। तो यहाँ पे टेंजेंट टू बीसी हो गया, डेफिनेटली ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच द सर्कल डिवाइड्स ईच साइड ऑफ ए बी एंड ए सी। सपोज मैं ये ट्राइंगल की साइड को 2 ले लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, सपोज यहाँ पे पॉइंट पी ले लेते हैं, सो बीपी आपका 1 हो जाएगा ना। आपको पूछा है कि सर्कल, सपोज यहाँ पे हम पॉइंट क्यू ले लेते हैं, सो हमें बी क्यू या फिर ए क्यू इज टू बी क्यू फाइंड करना है, हमें ए क्यू इज टू क्यू बी फाइंड करना है। तो लेट्स अज्यूम दिस इज एक्स। अब मैंने ट्राइंगल की साइड 2 ले रखी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो कहना इसे ए बी भी आपकी 2 होगी, जिसमें से ये एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब सर्कल में आपको टेंजेंट से सेकंड थ्योरम पता होगा कि बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यू इंटू बी ए। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, बीपी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 हो जाएगा आपका। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पूरा आपका बी ए कितना है 2 है, राइट। तो x आपका कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ गया, सो 2 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया 3/2 इज टू 1/2, विच इज नथिंग बट 3:1। तो 3:1 के रेशियो में ये सर्कल साइड को डिवाइड कर रहा है। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। So I'm sure all of you are pretty clear with this kind of questions. ठीक है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी है जिसको हम देखेंगे। अच्छा दोस्तों, जो मैं बता रहा था कि सर्कल का मैंने ये प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट किया हुआ है, कल ही कंडक्ट किया था, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हो रौनक कुमार शाह नाम से, और वहां पे फ्री लाइव क्लासेस में आपको ये दिख जाएगा, तो इसको जरूर से देख लेना। आज शाम को 8 बजे मैं ऐसा ही मेंसुरेशन का क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस टेस्ट। अभी थोड़ी देर में मेंसुरेशन का भी वीडियो आ जाएगा, तो उसको कॉन्सेप्ट का वीडियो, और फिर उसके बाद में उसका प्रैक्टिस टेस्ट और पीवाईक्यू हम करेंगे। ठीक है, एंड अपकमिंग फ्री जो वीडियोस है वो कौन से आ रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि मेंसुरेशन का आएगा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक छोटा सा बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके 10-15 मिनट का मैं वीडियो रिलीज करूंगा, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी उसमें आ जाएंगे, तो उसको जरूर से आप देख लेना। पूरा एरिया छोड़ मत देना, क्योंकि काफ़ी इजी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, एंड यू शुड नॉट रिग्रेट कि यार इसमें सिंपल पॉइंट था। सिमिलरली ट्रिगोनोमेट्री का भी बेसिक का मैं वीडियो रिलीज करूंगा। अपार्ट फ्रॉम द टाइम ऑल्सो स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज, स्कोर बूस्टर सीरीज फॉर LRDI। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मैं कंडक्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन पे मदद मिले। ठीक है, ये सारे फ्री सेशंस हो गए। Okay, let's look at this question. A chord of length 5 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center of a circle. तो एक 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, वो 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, राइट, कुछ इस तरीके का है। तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये 5 सेंटीमीटर का कॉर्ड है। ओके, लेट्स कॉल इट OAB, कुछ ऐसे नाम देते हैं। Now the length in centimeter of a chord that subtends an angle of 120 degree at the center of the same circle is।
अब देखो आपको पता है ये दोनों रेडियस है, तो ये ओ ए बी क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। मतलब हमें सर्कल का रेडियस भी पता चल गया 5 सेंटीमीटर है। अब हमें कहा है कि द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉर्ड दैट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। सो हमें रेडियस तो पता चल गया है सर्कल का। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ जो 120 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। मतलब वो कॉर्ड सेंटर से पास में होगा, वो कॉर्ड थोड़ा और लंबा होगा। जितना कॉर्ड लंबा होता जाता है उतना एंगल बढ़ता जाता है। और आपको पता है कि सर्कल में लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर होता है, राइट। ओके, सो ये 120 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। लेट्स, ये सेंटर तो हमने वो लिया, हमें रेडियस पता है 5 सेंटीमीटर है, लेट्स कॉल इट सी डी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। तो आपको पता है ये जो परपेंडिकुलर आप सेंटर से कॉर्ड पे ड्रॉ करते हो वो इसको बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और ये पूरा 120 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये तो 90 डिग्री है ही, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड करना है। तो कहने से दिस इज अ 30 60 90 ट्राइंगल, और उसमें आपको साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री पता है, तो व्हाट विल बी साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, सो इट विल बी √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूस। ठीक है, जैसे ये रिलेशनशिप आप सबको याद होगी, 30 60 90 ट्राइंगल। मतलब अगर ये 1 है तो ये √3 होगा और ये 2 होगा। तो अगर आपको इससे इसको लाना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय √3/2 करोगे। 2 को √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी √3 आएगा। सो हमें साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री फाइंड करना था, वो इतना हो जाएगा। तो ये हमारा हाफ पार्ट हो गया, तो पूरा कितना हो जाएगा इसका डबल, तो 5√3 हो जाएगा। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल पे ये था। इसमें एक तो सर्कल की कॉर्ड की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, एंड आपको 30 60 90 ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल पता होना चाहिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन को देखते हैं। द फिगर shows the rectangle ABCD with a semicircle and a circle inscribed inside it as shown. What is the ratio of the area of the circle to that of the semicircle? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, मतलब ये पर्टिकुलर वीडियो को आप यूज ऐसे भी कर सकते हो कि हर एक क्वेश्चन को देखो, वहां पे पॉज करो और फिर उसको ट्राई करो सॉल्व करने का, और फिर आप उसको प्ले करके सोल्यूशन और आंसर वेरीफाई कर सकते हो। और कमेंट्स में मुझे बताना कि क्या आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्या इससे आपको फायदा हुआ, आर यू गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस। तो ये सारी चीजें आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, ABCD रेक्टेंगल है, उसमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया एंड अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इनसाइड इट एज शोन। तो ये पूरा सर्कल है आपका। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ सेमी सर्कल। तो पहले तो हमें रेडियस पता करनी होगी, है ना, यहाँ पे। तो दोस्तों जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस r ले लेते हैं, छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल r ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें समझनी होगी कि अगर मैं ये सेंटर लेता हूँ, ये सर्कल का सेंटर लेता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ, तो बाय सिमेट्री दिस विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से पास होगा। ठीक है, ये तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा, दिस इज r, दिस इज कैपिटल R। सिमिलरली ये पार्ट r हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ और ऐसे कनेक्ट करता हूँ, तो कहना इसे, ये तो आपको पता है r है, तो ये क्या हो जाएगा r माइनस आर, क्योंकि ये पूरा r है, तो ये पार्ट आपका r माइनस आर हो जाएगा, इतना पार्ट। सिमिलरली इतना पार्ट कितना होगा, तो ये भी r माइनस आर ही हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका पूरा r प्लस आर हो जाएगा। सो लेट मी जस्ट शो दैट फिगर ओवर हियर। कुछ इस तरीके का मैंने फिगर बनाया है। देखो ये r माइनस आर है, स्मॉल r आएगा यहाँ पे, ये r प्लस स्मॉल r है, और ये भी r माइनस आर है। तो डेफिनेटली ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बना। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल अगर कोई भी आप लेते हो, अगर ये a है, ये a है, तो ये हाइपोटेनस a√2 होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, पाइथागोरस से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि दिस r प्लस आर इज इक्वल टू √2 टाइम्स r माइनस आर। हाइपोटेनस इज √2 टाइम्स साइड। अब इसको हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो क्या आ जाएगा, r प्लस आर इज इक्वल टू √2r माइनस √2 स्मॉल r। तो इसको इस तरफ ले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, r प्लस √2r इज इक्वल टू √2r माइनस r। और अगर मैं इसमें से r कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, 1 प्लस √2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, r कॉमन ले लिया तो √2 माइनस 1। ठीक है, 1 प्लस √2 को हम √2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो यहाँ पे स्मॉलर सर्कल की रेडियस एंड लार्जर सर्कल की रेडियस का रेशियो क्या आ गया, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1।
अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऊपर नीचे √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो √2 - 1 का √2 + 1 √2 - 1 तो 1 हो जाएगा, a² - b² से। तो मेरा रेडियस का रेशियो क्या आ गया, सो स्मॉल सर्कल की रेडियस मेरी कितनी आ गई, √2 - 1 की स्क्वायर, और लार्ज सर्कल की रेडियस कितनी आ गई, 1। अब जब मैं इसका एरिया निकालूंगा और एरिया का रेशियो लिखूंगा, तो हमें क्या कहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ सेमी सर्कल। तो सर्कल का रेडियस ये है, ठीक है, तो उसका एरिया क्या आ जाएगा, πr², मतलब ये तो 4th पावर में जाएगा। और सेमी सर्कल में क्या आएगा, तो आपका सेमी सर्कल में आएगा हाफ ऑफ पाई इंटू 1², क्योंकि रेडियस 1 है। तो कहना से कहीं ना कहीं ये इरेशनल नंबर की 4th पावर आएगी। कोई भी ऑप्शन में इरेशनल नंबर की 4th पावर नहीं दे रखी है, हमें सीधा सीधा नन ऑफ द टिक करना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको इतना समझ में आ गया कि यार आंसर में √2 - 1 की 4th पावर तो आएगी, तो आप सीधा ऑप्शन डी टिक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को आप कर सकते थे। चलो, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 42 mm, द एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में मिनट हैंड कितना ट्रैवल करता है, हाफ सर्कल मतलब 180 डिग्री ट्रैवल करता है, ठीक है, बाय टेकिंग पाई एस 3.14। तो आपको हाफ सर्कल का एरिया निकालना है, हाफ ऑफ पाई इंटू r², राइट। तो यहां पे 42 mm का स्क्वायर, पाई 3.14 रख दो, है ना। अब ये अप्रोक्सीमेटली भी अगर आप देखोगे 3.14 इंटू 42 का स्क्वायर कितना होता है ना। सो 42 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 1764, करेक्ट। बेस 50 मेथड से आप निकाल सकते हो, 42 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 42 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो राइट साइड में 8 लिख दिया 8 का स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में 25 - 8 कर दिया 1764, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो 3.14 का हाफ कितना होगा, 1.57 इंटू 1764, मतलब ऑलमोस्ट इसका 1.5 गुना करना है, तो इसमें ऑलमोस्ट 900 ऐड हो जाएगा। सो इसके आसपास कुछ आंसर आ जाएगा, हमें एग्जैक्टली फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, वैसे एग्जाम में तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। ओके, let ABC be a right angle triangle with hypotenuse BC of length 20 centimeter. If AP is perpendicular on BC, then the maximum possible length of AP in centimeter is, ठीक है। हाइपोटेनियस BC है आपका, तो कुछ इस तरीके का आपका हाइपोटेनियस है। इफ AP is perpendicular on BC, तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देन मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एपी। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको पेन यूज ही करने की जरूरत है, आप माइंड में विजुलाइज करके आंसर सीधा टिक कर सकते हो। 10 कैसे, क्योंकि ये 10 है, ये 10 है, मैक्सिमम ये 10 ही हो सकता है। अब इसको समझने के लिए सर्कल यूज करते हैं। दोस्तों सर्कल के अंदर अगर मैं एक डायमीटर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, अब डायमीटर अगर आप देखोगे तो यहां पे भी 90 का एंगल बनाएगा, ठीक है, यहां पे भी 90 का एंगल बनाएगा, ऐसे अलग अलग पॉइंट पे 90 का एंगल बनाएगा। तो उसमें ये पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, कहने से जब वो रेडियस होता है तब। बाकी सारे अगर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो तो ये डिस्टेंसेस कम हो जाएंगे, जब ये रेडियस हो जाता है तभी होगा ये, ठीक है ना। मतलब ये आपका सिमेट्रिक फिगर बनेगा तभी ये होगा, ये एक्जेक्टली इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको विजुलाइज कर सकते हो। ये BC यहाँ पे है बाय द वे, राइट, BC ये पार्ट है, ओके, और ये A है, ये P है। सो आंसर सीधा यहाँ पे 10 टिक कर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यार अलग अलग तो काफी सारे राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, इसमें परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा। एक ट्राइंगल आप ऐसे बना सकते हो, आइसोसेलेस अगर बनाया तो उसका बिल्कुल सेंटर में आएगा। आप ऐसे भी तो बना सकते हो ट्राइंगल, और उसमें अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आएगा। तो इसमें सबसे बड़ा तो यही होगा जब ये तीनों इक्वल हो जाते हैं। दिस इज द पॉइंट दैट आई कन्वेड। चलो, लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन। इन द फिगर बिलो, टू सर्कुलर कर्व्स क्रिएट 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल्स विद देयर रिस्पेक्टिव सेंटर्स। इफ द लेंथ ऑफ द बॉटम कर्व इज y, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर कर्व। लेंथ फाइंड करना है, मतलब लेंथ मतलब सर्कमफरेंस का पार्ट, आर्क का लेंथ फाइंड करना है। आर्क का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, सो एंगल बाई 360 इंटू सर्कमफरेंस दैट इज 2πr। आप इस तरीके से लेंथ फाइंड करते हो आर्क का, ठीक है। चलो, तो दोस्तों इस फिगर को थोड़ा सा खुल के समझते हैं कि क्या है ये फिगर। तो कुछ ऐसा फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है।
इन द फिगर बिलो टू सर्कुलर कर्व्स क्रिएट 60 एंड 90 डिग्री एंगल्स विद देयर रिस्पेक्टिव सेंटर। ये जो ऑरेंज कलर का सर्कल है वो यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, ठीक है, वो 60 डिग्री का सपोज बना रहा है, ओके। एंड ये जो बड़ा वाला सर्कल है वो यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, आप ऐसे ले लो, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये सर्कल बड़ा एंगल बनाएगा इफ द लेंथ ऑफ बॉटम कर्व y इज 10 पाई, राइट। सो ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। लेट्स गिव देम सम नेम ए बी पी एंड क्यू, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला कर्व है, मतलब ये वाले कर्व का लेंथ हमें, y का लेंथ हमें दिया हुआ है 10 पाई, ठीक है, और वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है अपने सेंटर के साथ में। तो गाइस ये लेंथ हमें कैसे मिलेगा, तो कहने से इट इज 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, और ये हमें कितना दिया हुआ है, 10 पाई दिया हुआ है। बड़ा आसान सा हो गया ये तो हमें यहाँ पे r मिल जाएगा, दिस इज 1/6, दैट इज 1/3। सो पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1/3 इंटू आर, सॉरी पाई कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। तो r कितना आ जाएगा आपका 30, मतलब ये रेडियस आपका 30 आ गया, ठीक है। ओके ये रेडियस आपका 30 आ गया, ओके। अब यहां पे अगर मैं ए बी को कनेक्ट करता हूं तो कैन आई से ए क्यू बी, ट्राइंगल ए क्यू बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि ये 60 डिग्री और ये दोनों रेडियसेस है तो सेम हो गए। तो ये 30 है तो ये भी 30 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ट्राइंगल ए पी बी को देखना है। देखो क्वेश्चन ऐसा हो गया ए बी एंड पी, अब उसमें ये 30 डिग्री है और ये 90, सॉरी ये 30 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है और ये दोनों रेडियसेस है तो सेम हो गए। तो कहने से ये दोनों 45 हो जाएंगे। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, कहने से 15√2 हो जाएगा। रेडियस क्या होता है, तो आप इसको हाइपोटेनस को आइसोसेलेस ट्राइंगल में हाइपोटेनस को √2 से डिवाइड करते हो तो साइड मिलती है, साइड को √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो हाइपोटेनस मिलता है, ठीक है। तो ये हमें पीबी मतलब ये जो है उसका रेडियस हमें 15√2 मिल गया। अब हमें क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर कर्व। अब हमें ये कर्व का लेंथ फाइंड करना है। वो एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, आर हमारा कितना आ जाएगा 15√2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/4, तो 2√2/4 क्या हो जाएगा 15 पाई अपॉन √2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर ऑप्शन ये आ जाएगा। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो PYQ। लेट C1 एंड C2 बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल सच दैट डायमीटर ऑफ C1 इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दैट ऑफ C2, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है। डायमीटर ऑफ C1 इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन C2, मतलब रेडियस कितना लंबा होगा 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। तो बाहर वाला जो है वो मेरा C1 है, ये C2 है, ओके। इफ अ कॉर्ड ऑफ C1 हैज लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड टेंजेंट ऑफ C2, अब यहाँ पे हमें कॉर्ड ड्रॉ करने को कहा है विच इज टेंजेंट टू दिस C2। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये कॉर्ड है। तो अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूँ, ये रेडियस है, अगर ये x है तो ये रेडियस क्या हो जाएगी x+1 हो जाएगी। और हमने कॉर्ड 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा। तो दोस्तों बड़ा सिंपल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक साइड 3 है और दो साइड में डिफरेंस 1 का है, तो क्या होने चाहिए, ये साइड 4 और 5 ही होने चाहिए। तो हमें पूछा है देन द डायमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ C1 इज, तो रेडियस 5 है, डायमीटर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इतना सिंपल सा सवाल है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि सर्कल अच्छे से कर लेना, ऐसे इजी क्वेश्चन आ गए तो आप लोग छोड़ने नहीं चाहिए, ठीक है। चलो let's look at this question. In a circle of radius 11 centimeter, CD is the diameter and AB is a chord of length 20.5 centimeter. CD is the diameter, CD is the diameter, जिसका रेडियस 11 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 22, ओके। तो CD का लेंथ हमें पता है 22 है और हमें दिया हुआ है AB is a chord of length 20.5 centimeter. If AB and CD intersect at point E inside the circle, AB एंड CD यहाँ पे पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली E कांट बी द सेंटर, ठीक है। E सेंटर नहीं है तो कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे समझ लो।
सीई हैज लेंथ 7, मतलब सी छोटा है तो ये 15 हो जाएगा। ये ए बी ले लेते हैं। तो हमें पूछा है देन द डिफरेंस ऑफ लेंथ्स ऑफ बीई एंड एई। तो ये दोनों लेंथ का डिफरेंस क्या होगा, ये और इसके लेंथ का डिफरेंस क्या होगा। अब इंटरनल इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स आपको पता होगा, इनफैक्ट यही क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस टेस्ट में भी रखा था, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बट इट वाज अ पीवाईक्यू। सो मैंने वहां पे भी डिस्कस किया है, यहाँ पे भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि सी ई इंटू वी डी। बट यहाँ पे एक शॉर्टकट है, वो समझते हैं, ठीक है, इसमें इक्वेशन में मत उलझना। इज इक्वल टू ए ई इंटू ई बी, ठीक है। अब सी 7 है, ई डी 15 है। ए ई और ई बी सपोज हम एक्स एंड वाई ले लेते हैं, जिसमें हमें पता है एक्स प्लस वाई हमारा कितना है, 20.5 है। मतलब हमें 20.5 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है जिसका प्रोडक्ट आपका 105 आ जाए, और उनका डिफरेंस हमें यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। तो अगर मैं डिफरेंस ऑप्शन ए लेता हूँ 0.5, बड़ा आसान है। तो 20.5 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करो कि डिफरेंस 0.5 आ जाए, तो मैं कह सकता हूँ 10 एंड 10.5, राइट। टोटल 20.5 हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 105 हो गया कि नहीं। डन, वी गॉट द आंसर। आपको 2-3 ऑप्शन ट्राई करने थे। देखो कोई भी नंबर को आप इस तरीके से दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते होने चाहिए। जैसे अगर मैं कहता हूँ डिफरेंस 2.5 है, तो क्या आप सोच सकते हो, एंड दिस आर द काइंड ऑफ मेंटल एक्सरसाइज यू नीड टू डू। 20.5 को दो पार्ट में स्प्लिट करो कि डिफरेंस 2.5 आए, तो आप क्या कहते, तो आप यहाँ पे कहते 11.5 एंड 9, टोटल 20.5 हो गया, एंड आपका डिफरेंस कितना आ गया, 2.5। सिमिलरली 3.5 है, तो आप यहाँ पे कर देते 8.5 एंड 12, 8.5 एंड 12। तो आपको इस तरीके से सोचना है, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिल गया, इसकी जरूरत नहीं है। चलो लेट्स लुक एट वन मोर इजी क्वेश्चन। फिगर देख के ही लग रहा है। अ कॉर्ड ए बी ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस दिया हुआ है, ए बी आपने ड्रॉ किया है कॉर्ड। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन ए पी बी। तो यार ये शेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा, ये हमें पूछा है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, और ये 24 है तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट इट हियर। ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 12 13 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, राइट। अब हमें ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। ये कंप्लीट सेक्टर का एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो उसमें हाँ, हमें यहाँ पे ये एंगल नहीं दिया हुआ है ना। अच्छा एंगल दिया हुआ है x डिग्री, अच्छा एंगल भी दिया हुआ है दोस्तों। अगर आप देखोगे हर एक में x आ रहा है, तो हमें एंगल दिया हुआ है x डिग्री। तो ये पूरा सेक्टर का एरिया क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो कैन आई से मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ ये जो सेक्टर है ए पी बी, उसमें से ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी सब्ट्रैक्ट कर देना है ना, आई विल गेट माय आंसर। तो इसका एंगल x डिग्री है, तो x अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर विच इज 13 स्क्वायर, माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, तो हाइट आपका 5 है, बेस 24 है, 1/2 5 इंटू 24, ठीक है। तो देख के पता चल रहा है ऑप्शन सी आ जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। चलो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। इन अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर, arc AB makes an angle 60 degree at O. Let R be the region bounded by the radii ON OB and the arc AB. If C and D are 2 points on OA and OB respectively, such that OC equal to OD and the area of triangle OCD is half that of R, then find the length of OC in सेंटीमीटर। क्वेश्चन देख के ही शायद आपको ऐसा लगेगा काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। पहले तो इसका फिगर दिया नहीं है, फिगर हमें बनाना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अगर अपफ्रंट सॉल्व नहीं करना है, बाद में भी सॉल्व कर सकते हो। हालांकि ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने फिगर सही बना दिया, जैसा बताया वैसे कर लिया, शायद 1-1.5 मिनट चला जाएगा और 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। तो मतलब स्टिल यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन अंडर 3 मिनट्स टाइम, विच इज अ गुड थिंग। तो देखते हैं कैसे करेंगे। फिगर क्या है, इन अ सर्कल विद सेंटर O, रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 1 है। आर्क ए बी मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, तो ये ए बी मैंने ले लिए पॉइंट्स, और ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब ये क्या हो गया आपका, ये ओ ए ओ बी इक्वल होते, तो ये ओ ए बी ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे पॉइंट सी एंड डी मैंने ओ ए ओ बी पे लिए, तो ट्राइंगल ओ सी डी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही हो जाएगा,
है ना, और ये 1 है तो ए बी भी 1 आ जाएगा। ये सारी चीजें हमें पता है अब तक। अब हमें क्या कहा है, लेट आर बी द रीजन बाउंडेड बाय रेडी ओ ए ओ बी एंड आर के बी। मतलब वो कौन से रीजन की बात कर रहे हैं पता है, ये रीजन की बात कर रहे हैं। तो ये इस रीजन का एरिया हमें आर दिया है। सो एरिया ऑफ ओ ए बी, ठीक है, आर को ओ ए बी इज गिवन एज आर, राइट। और ओ सी ओ डी दोनों इक्वल है, ये हमें इक्वल दिए हुए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी डी इज हाफ दैट ऑफ आर। अब देखो यहां पे है ना दो, एक ट्राइंगल ऐसा है आपका ओ ए बी, और उसमें आपने 2 पॉइंट सी एंड डी ऐसे लिए हैं। अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब सी डी हैज टू बी पैरेलल टू ए बी, मतलब दिस ओ सी डी एंड ओ ए बी टू सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है, याद रखना। अगर सपोज इसका एरिया A1 है, बड़े वाले का एरिया A2 है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। अब ये रेशियो हमें दिया हुआ है हाफ है, ठीक है। हमें क्या कहा है, सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओसीडी इज हाफ दैट ऑफ आर। ओके, ओसीडी का एरिया हमारा पूरा जो आर है उससे हाफ होगा। अच्छा बाय द वे आर क्या होगा, तो आर तो हम निकाल सकते हैं, कैन आई से 60 अपॉन 360 दैट इज 1/6 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर तो आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा पाई/6, ठीक है। तो यहां पे हमें एक चीज पता चल गई कि ये जो पूरा आर है वो आपका पाई/6 है। तो ट्राइंगल ओसीडी का एरिया कितना हो जाएगा, ट्राइंगल ओसीडी का एरिया उसका हाफ है, तो पाई/12 हो जाएगा। ये एरिया आपका पाई/12 हो गया। अब हमें पूछा क्या है, लेंथ ऑफ ओसी इन सेंटीमीटर, हमें ये लेंथ निकाला है। तो दोस्तों ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया आपको पता है पाई/12 है। तो बड़ा सिंपल हो गया ना क्वेश्चन, अभी तो सिंपल यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं। सो लेट्स अज्यूम लेंथ ऑफ ओसी इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर विच इज गिवन एज पाई/6, सॉरी पाई/12, क्योंकि हाफ ऑफ दैट का है ना, तो ये पाई/12 है। तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 3 हो जाएगा, सो पाई अपॉन 3√3 आ जाएगा। तो एक्स क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन 3√3, दैट इज ऑप्शन सी। सो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है, थोड़ा लेंदी है। सिचुएशन समझ लिया, 2 मिनट लगेंगे, फिर 1 मिनट उसको सॉल्व करनी, 1 या 2 मिनट और सॉल्व करने के लिए लगेगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रख के इसको सॉल्व करना है। तो या ये क्वेश्चन अगर कैट में आए तो इसको मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन कहा जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को तभी सॉल्व करोगे व्हेन यू आर ट्राइंग टू अप्रोच 99.9 परसेंटाइल काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। 99 परसेंटाइल के लिए भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पूरे क्वांट के सारे एरिया कंप्लीट किए हैं, आपको इजी दूसरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आसानी से कर सकते हो। जैसे पहले तो इसको मुझे पढ़ना पड़ेगा, सो आप इसको रीड करो यहाँ पे पॉज करके, और फिर मैं इसका आपको फिगर दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन है। चलो तो अब इसका फिगर देखते हैं। देखो जो वो फार्मर है उसने यहाँ पे ये एक फील्ड है, ये सर्कुलर फील्ड ऐसा होना जरूरी नहीं है, वहां पे एक पोस्ट है, वहां पे अपने काव को टाई कर दिया। कितने मीटर रोप से टाई कर दिया है, तो 25 मीटर का रोप है। तो डेफिनेटली काव क्या करेगी, ये 25 मीटर के रेडियस का जो सर्कल बनेगा उसमें ही ग्रेस कर पाएगी। उसका वो कितना पे कर रहा है, 1000 रुपीज पे कर रहा है। तो ये पूरे सर्कुलर एरिया का वो 1000 रुपीज पे कर रहा है। अब उसने क्या किया, यहां पे ऐसे एक शेड बना दिया जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, कीपिंग दिस पोस्ट एज वन ऑफ द कॉर्नर। तो ऐसा शेड बना दिया। नाउ कैन आई से काउ वॉन्ट बी एबल टू ग्रेज इन दिस एरिया, क्योंकि यहाँ पे तो उसने 4 वॉल से शेड बना दिया, काउ अंदर वॉल के अंदर जाके तो नहीं खाएगी, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये ब्लू कलर के रीजन में वो ग्रेज नहीं कर पाएगी काउ। एंड अब अगर आप देखोगे काउ की रस्सी इतनी है, तो यहाँ पे वो अटक जाएगी, तो इतने ही पोर्शन में वो ग्रेज कर पाएगी। दिस इज द ग्रेजिंग एरिया, मतलब ये वाले एरिया में ग्रेज नहीं कर पाएगी। और ये सपोज 15 फीट हम ले लेते हैं, ये 10 फीट ले लेते हैं, तो यहाँ पे 10 फीट की रस्सी बचेगी, यहाँ पे 15 फीट की रस्सी बचेगी, क्योंकि टोटल 25 मीटर है। सिमिलरली यहाँ पे वो इतने ही एरिया में ग्रेज कर पाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे वो इतने एरिया में ग्रेज कर पाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है?
ठीक है, तो मतलब वो कौन से एरिया में ग्रेज नहीं कर पाएगी, तो जो मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है, एक तो वो शेड और दूसरा ये वाला एरिया, इसमें ग्रेज नहीं कर पाएगी, बाकी सारे में तो कर पाएगी। अब हमें पता है कि ये तो हमारा 90 डिग्री है, मतलब बाकी के 270 डिग्री में तो वो ग्रेज कर पा रही है, मतलब 3/4 तो इसका डेफिनेटली आएगा। ठीक है, 3/4 इसका कितना हो जाएगा, 750 तो उसको पे करना ही करना है, क्योंकि ये सारा तो ग्रेजिंग एरिया है और 750 रुपीज तो पे करना ही करना है। अब बाकी जो 250 रुपीज बचे, उसमें से पूरा उसको पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ब्लू कलर का है वो नॉन ग्रेजिंग एरिया है, मतलब ये ग्रेजिंग एरिया है। ठीक है, अब ये पूरा आपका एक क्वार्टर सर्कल है, तो क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू 25 का स्क्वायर। ये टोटल आपका क्वार्टर सर्कल है, उसमें से कितने एरिया में वो ग्रेस कर पाएगी, तो कहना है ये 10 फीट का जो क्वार्टर सर्कल बनेगा, पाई बाई 4 इंटू 10 स्क्वायर, प्लस ये 15 फीट का जो क्वार्टर सर्कल बनेगा, पाई बाई 4 इंटू 15 स्क्वायर, इतने में वो ग्रेस कर पाएगी। तो ऑफकोर्स उसको उतना ही फ्रैक्शन पे करना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, जरा सॉल्व करते हैं। पाई बाई फोर तो निकल गया, 100 प्लस 225 325 बाई 625 विच इज नथिंग बट 13/25। मतलब उसको ये 250 का 13/25 पोर्शन पे करना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 10 सा। ठीक है, सो उसको 750 प्लस एडिशनली 130 पे करना चाहिए, मतलब उसको 880 रुपीज पे करने चाहिए। दैट्स योर आंसर। सो इफ यू सी वी हैव बीन गिवन दैट ऑप्शन बी एज 880, सो इसको टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। ठीक है, इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, that's it guys, now see you in the other video, don't forget to join me today in the special class। अगर आपका वो मिस हो जाता है तो बाद में ज़रूर से उसको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे देख लेना। अगर आप पहली बार देख रहे हो कोई भी क्लास, तो उसके लिए आपको एक अनलॉक कोड लगेगा SHAH10, आप अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हो। बाकी अनअकैडमी आप प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले जाते हो, तो उस टाइम पे भी SHAH10 यूज़ करना मत भूलना। That's it guys, we'll keep coming up with more such videos, we'll be there with you till you clear all your exams, not only CAT, SNAP, CMAT, NMAT and all the other exams. So keep learning guys. Bye bye and take care.